Hello everyone. My name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. And today I will be doing a weekly reading for you all. So there are three options. The one is the heart. The second is the unicorn glitter coin. And the third multicolor ball. So you can choose any three options. You can close your eyes, invoke your spirit guides, your angels to help you to choose one out of these three. Pile 1 heart, pile 2 is unicorn, pile 3 is this multicolor ball. So let's begin with the reading. Hello pile 1 members, the one who have chosen this heart. Let's begin with your reading. So let's see about your coming week. So invoke your archangels, angels, your spirit guides, your guides to know what you have to focus on your coming week. 1, 2, and one more card for your coming week. 3. Now let's see about your money perspective, that what you have to do related to your money. So to your guides, your spirit guides help you to know about your money situations in coming week. Thank you. Now let's see about your love life for the coming week. So your guides, your angels, your spirit guides, your higher self to guide you and to tell you about your coming week. Let's see about your health for coming week, what you have to focus on your health, what you have to know about your health in the coming week. Thank you. So if you have any question, you can ask that question in your mind right now, and your angels and your guide will help you to answer that particular question. So you have to ask one question. For that you are seeking an answer. So think about the question you have in your mind right now, and the angels will give you the answer about that question. So let's begin with your reading. So let me take your tarot first. So let's see. Okay, so in this coming week you have to release any doubts you are having in your mind, and you have to release the situations also from your past and the situation that people are creating around you. You have to let go of that situation. If you have people around you who are holding you, then you have to release those people from your life. And in this coming week I am seeing that आपकी लाइफ में अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत जल्द ही जाने वाला है. So now let's see about your second card. Okay, so in coming week
आई एम सीइंग आपने आपकी जो भी विशेस हैं, जो भी आपने ड्रीम करा है, जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या आपकी जो प्रेयर्स हैं, दैट विल बी फुलफिल in coming week. And good fortune, I am seeing that in coming week there is a good fortune. एंड ऑब्वियस है कि अगर मैं गुड फॉर्चून में बोल रही हूँ तो यूनिवर्स इज देयर, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल. एंड कमिंग वीक में आई एम सीइंग कि आप लोगों को सरप्राइजेस भी मिलने वाला है. जिसने पाइल ए चूज़ किया है, ये रीडिंग उसके लिए है. एंड इन कमिंग वीक आपको सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं. एंड आई एम सीइंग कि मे बी इन कमिंग वीक आप लोग, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों की जॉब भी लग जाएगी इस कमिंग वीक में. लेट्स सी अबाउट योर थर्ड कार्ड, अ न्यू स्टार्ट. सो यस, द ड्रीमर. जैसे मैंने बोला कि मैं इस रीडिंग में देख पा रही हूँ, ये बड़ा जॉब ओरिएंटेड रीडिंग निकल के आ रहा है. सो बहुत से जने जिन्होंने पाइल ए चूज़ किया है, वो अपनी लाइफ में इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं. आप लोगों ने अगर इंटरव्यू दिए हैं तो इस वीक में, कमिंग वीक में आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा दैट आपकी जो जॉब है वो फिक्स्ड हो गई है, आपको जॉब मिल जाएगा. ट्रस्ट योर सेल्फ. एंड आपके अंदर जो डर है, ये कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है कि आपके अंदर जो डर है, आपको उस डर को साइड में रखना पड़ेगा एंड आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा. सो trust yourself and move ahead in your life. So now let's see about your health. So in this I am seeing आपको अपनी हेल्थ के लिए इस एंटायर वीक आपको क्या करना है, दैट इस वीक अगर आप अभी तक अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इस वीक आई वुड से कि अपने ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का आप ध्यान रखें. आप जैसे अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे, आपको वैसे ही हेल्थ आपको मिलेगा. सो अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा फील करवा रहे हो, अपने आप को अच्छा फील करवा रहे हो, तो ये एंटायर वीक आपकी जो हेल्थ है वो आपको सपोर्ट करेगी. और अगर आप अपनी बॉडी को इग्नोर कर रहे हो, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, अगर आपको नॉर्मल खांसी ज़ुकाम भी है और आप दवाई नहीं ले रहे हैं, तो इस वीक आपका खांसी ज़ुकाम बढ़ने वाला है. सो इट्स बेटर टू हैव medicine on the time and treat your body as it is the soul of yours. Let's see about your love for the entire week. Okay, so for love, for this entire week, what I am seeing that you have to do something for someone. Here I am getting love is not only about a relationship, love is also about giving in a relationship. And यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको अपनी अटेंशन, अपना प्यार आपको दिखाने की ज़रूरत है. दूसरों को अगर हेल्प चाहिए, उनको हेल्प करने की आपको ज़रूरत है. दिस कार्ड ऑल्सो शोइंग मी दैट कमिंग वीक में आप ज़रूर किसी ज़रूरतमंद की मदद करें. आपको अगर लगता है कि किसी जने को ज़रूरत है आपकी, तो उसके लिए आप स्टैंड लें. इस कमिंग वीक में ऐसा कोई ना कोई आपसे हेल्प मांगने आएगा, तो इस वीक उस पर्सन की हेल्प ज़रूर करें, उसको इग्नोर नहीं करें. नाउ वी विल सी अबाउट योर मनी. आपको अपना कमिंग वीक में आपको अपने मनी के लिए व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर मनी सॉल्यूशंस. सो इस कमिंग वीक में आपको अपना ध्यान सॉल्यूशन पे ज़्यादा देना है. आपको स्टक नहीं होना है सिचुएशंस में, रेदर देन आपको अपनी चीज़ों का सॉल्यूशन को ढूंढना है. सो वंस यू विल फाइंड द सॉल्यूशन, डेफिनेटली आपका जो भी स्टक चीज़ें हैं आपके आसपास, वो मूव ऑन करना स्टार्ट हो जाएंगी. दिस कार्ड ऑल्सो शोइंग मी अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है, देन फाइंड द सॉल्यूशन. टॉक टू दैट पर्सन जिसने भी आपका पैसा लिया है, एंड आपको बात करने से सॉल्यूशन मिलेगा और आपका जो भी मनी रिलेटेड इशू है वो सॉल्व होगा इस कमिंग वीक में. बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन by talking. So pile A,
नाउ वी विल सी कि आपने जो भी क्वेश्चन अपने माइंड में पुट किया है उसका आंसर आपकी एंजल्स आपको क्या देना चाह रही हैं. सो द आंसर, so answer here is ask for help from others. So पाइले मेंबर्स, मैं यहाँ देख रही हूँ कि एंजल्स भी यही कह रही हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए. सो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप पाइले मेंबर्स, आपने जो क्वेश्चन पुट किया है वो क्वेश्चन आई एम सीइंग इट्स रिलेटेड टू मनी ऑल्सो. सो अगर आपने मनी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट किया है तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है. आपको अपने बड़ों से या जिसको आप समझते हो कि आपकी बात को समझ सकता है, आपको उससे हेल्प लेने की ज़रूरत है और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा. Now I will be doing your fortune reading. So close your eyes, invoke your angels, your spirit guides, your guardian angels, and let's see what message they want to tell you. So let me put it high little so that you all can see. Okay, so again what I am seeing here, that Pile members, there is lot of question in your mind going on related to money, lot of money, financial abundance. What I am seeing this coming week, आपको money से related जो भी आपके fears हैं, जो भी आपके doubt हैं, वो कैसे solve होंगे. Again the card is saying that you have to ask for the help, and definitely जब आप किसी से मदद लोगे, सॉल्यूशन लोगे about your situation, तो definitely you will be getting that solution. And I am seeing that आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन है वो related to money है और उसका आंसर ये है that you need to ask for the help, and definitely you will get the solution related to your money problem. So moving forward, I will be drawing some universe messages for you. So let's see. Let's invoke your guides, your angels, and let's see what message from the universe is coming to your way. And I will be taking out some words for you. And let's see. Okay, thank you. Yes, so the message for you from the universe is everything is always working out for me. So you don't need to be worried about जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके लिए वर्क कर रहा है, वो आपके लिए बेटर है, वो आपकी फ़ायदे के लिए है, एंड एवरीथिंग इज़ perfect for you, so you don't need to be worried about. And let's see about your words, that what universe is saying you. Okay, so the word I got here is wine. W-I-N-E. So wine showing me here that you need to chill. Wine is related to your relax. So you have to, don't worry. You have to relax your mind, calm your mind, and still your mind. Everything is falling under your betterment. So you don't need to be worried about. And next I'm getting okay. So the next word is here for you is okay. So again I would say here that everything is fine, everything is okay, you don't need to be worried about, and the coming week will be a relaxing week for you, and definitely your dreams will be coming true in the coming week. So this is the reading for you, Pi A members. I hope you all resonate with my reading.
Thanks so much for joining. Hello, Pile B members, the one who have chosen this beautiful unicorn. Let's start with your reading. So close your eyes and invoke your archangels, your angels, your spirit guides, your higher self to give the message related to the coming week, that how will be your coming week. So invoke and let's see what angels, your higher self, your spirit guides wants to give you the message for the coming week. One more time, let's shuffle and you will be choosing your third card for your coming week. Now let's see related to the money. How will be your coming week related to the money? What solution your angels wants to give you about your finances, your work. Thank you. Let's see about your love for the coming week. What message your angels wants to give you about the love for the coming week. Thank you. Now we will see about your health, that what you have to focus on your health for the coming week, what angels, your spirit guides wants to tell you about your coming week related to your health. Thank you. Now, Pile B members, close your eyes. Think about the question, a particular question. You want the answer for that particular question. Think about that question in your mind. Ask angels to give you the answer that is best for you, for your higher self. Thank you. So let's begin with your reading, Pile B members. So let's see about your tarot cards. Okay, so for the coming week, what I am seeing that you will be spending your time with your family. So Pile B members, in the coming week, I am seeing a lot of peace, lot of commitment in your life. I am seeing that you will be spending a lot of time with your family members. Maybe I am seeing that in this coming week you will be going somewhere for a short travel, or you can say a small gathering. You will be enjoying this week with your family, and in this coming week you will be feeling a lot of financial security also. There will be a harmony between your family members. Even I am seeing that पाइल भी मेंबर्स आप में से हो सकता है कि कोई लोग, आप में से कोई प्रेग्नेंट है या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो दैट आई एम सीइंग दैट बहुत सारी खुशियाँ मैं कमिंग वीक में देख रही हूँ. मैं ये भी देख रही हूँ कि कमिंग वीक में आपके घर में आपको कोई खुशी मिल सकती है रिलेटेड दैट समवन इज प्रेग्नेंट इन योर फैमिली. Now let's see your second tarot card. So definitely second card भी जो आया है निकल के, वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कार्ड ही आया है, सेलिब्रेशन से कार्ड रिलेटेड आया है. सो डेफिनेटली पाइल बी मेंबर्स, आप लोगों ने जो ये चूज़ किया है, इट मीन्स आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है, या आपके घर में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है. इस वीक आपके घर में कोई ना कोई शादी है, कोई ना कोई फंक्शन है
डेफिनेटली ये वीक आप लोगों के लिए एक फैमिली के साथ गुजारने वाला दिन है। ये वीक आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट कार्ड, लेट्स सी। So next card, tarot card is like a lot of opportunity I am seeing in your coming week, and I am seeing that this coming week will be a time where you will take actions, a lot of action, lot of work will be there। आप लोग बहुत सारा काम करने वाले हो। ये काम जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये काम मैं देख रही हूँ, ये काम आपका सेलिब्रेशन से रिलेटेड ही काम है जो आपको ऑक्यूपाई करेगा। आपको घर में आपके कोई ना कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं और आप लोगों को अपने घर को सजाना है या डेकोर पे वर्क करना है। तो बहुत ज़्यादा मैं अगर बात करूँ तो इन तीनों कार्ड्स में जो मुझे दिख रहा है दैट कमिंग वीक आपका बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के साथ निकलने वाला है, जहाँ पे आप अपने गेस्ट को भी अटेंड करने वाले हैं और बहुत सारा आपके लिए लाइफ में ये वीक खुशियाँ लेके आने वाला है। So let's see about your health. Related to your health, your coming week that you have to do is like you have health wise you will be a joy। here I am looking joy में यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ हेल्थ वाइज। मुझे फीलिंग आ रहा है कि कमिंग वीक में बहुत सारे जने जो हैं वो डिलीवरी करने वाले हैं। कमिंग वीक में मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स को देखूं तो बहुत मैच कर रहे हैं सारे कार्ड्स आपके, और ये मैच जो हो रहा है कि आपकी बॉडी एक ट्रांसफॉर्म होने वाली है। ये बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसकी बॉडी दोबारा ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है इन जनरल कि जो मदर्स कमिंग वीक में डिलीवरी देने वाले हैं उनकी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी एंड दे विल बी गेटिंग अ जॉय इन देयर बॉडी। और अगर मैं और लोगों के लिए बात करूं तो मेरे को ये कार्ड बता रहा है कि दैट देयर इज़ आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ ऊर्जा, जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में हमें एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। तो कमिंग वीक आपकी बॉडी, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाली है। आपको एक नई ऊर्जा अपनी बॉडी में दिखने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि इस वक्त मुझे फीलिंग आ रही है जैसे मैं भाग रही हूँ। सो कमिंग वीक जो आपका रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहने वाला है। आप बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ, बहुत ज़्यादा आप एनर्जी के साथ इस कमिंग वीक को बिताने वाले हैं। सो लेट्स सी रिलेटेड टू योर लव। Okay, so the cards here is telling me that you have to look to your inner strength. You are stronger than you realize. आपके अंदर जितनी क्षमता है काम करने की या जितनी क्षमता है अपने आप को देखने की, उससे ज़्यादा आपके अंदर पावर है। अपनी उस पावर को समझिए, अपनी उस पावर को आप बाहर निकालिए। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए। आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है वो लोग स्टैंड लें अपने लिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझें कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो ये कमिंग वीक आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी about your money, finances. So the cards is telling me that everything is good around you. सब कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके आसपास भी बहुत कुछ अच्छा है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। जो आपको चाहिए आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको अपना सारा ध्यान उस गोल पे लगाना पड़ेगा। इनकम वाइज, फिनेंसेस वाइज आपको जो भी चाहिए आपको उसके ऊपर जीत और मेहनत करनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली सक्सेस आपकी तरफ है। सो नाउ पाइलवी मेंबर्स, आप लोगों ने जो क्वेश्चन एंजल्स से रीडिंग की स्टार्टिंग में पूछा था, नाउ लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में।
सो एंजल इज सेइंग दैट मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको, भगवान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ के भगवान में जब आप ध्यान में जाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो भी अच्छा होगा वो आपको आपके क्वेश्चन के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा मिलेगा. जो आपके लिए अच्छा है वो भगवान आपको देंगे. एंड टू गेट द आंसर आपको मेडिटेशन करनी है, आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है इस एंटायर वीक में. नाउ लेट्स सी what angels guidance wants to tell you about Pi B members. So you can invoke your angels and let's see वो आपको और क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं, वो आपको क्या बताने चाह रही हैं फॉर द कमिंग वीक. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Okay, so the angels wants to tell you that luck is on your side. You are on the ultimate spiritual path. Keep doing what you are doing. So here I am seeing कि पाइल बी members जो हैं उनमें से बहुत लोग जो हैं वो मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, वो लोग स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं. 777 आपका एंजल नंबर है. सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट. एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर भी यही बोलता है कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स. सो आपको ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. एंड यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट. लक इज़ एट योर साइड, यूनिवर्स इज़ विद यू. जस्ट कीप फेथ एंड डू लॉट ऑफ मेडिटेशन. सो अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है. एंड लेट्स सी अबाउट योर वर्ड्स ऑल्सो, दैट यूनिवर्स आपको क्या वर्ड्स में मैसेज देना चाहता है. सो लेट्स सी अबाउट द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. सो यू कैन इन्वोक योर गाइड्स, योर एंजल्स टू गिव यू द मैसेज, यूनिवर्स मैसेज. एंड लेट्स pick up the words for you and let's see what message from the universe you are getting, Pile B members. Okay, so universe message: take a moment now to acknowledge what is going right in your life. The positive focus will attract more of what you desire in your life. So if I see this message and your money message is same, that you have to focus on the positive things, you have to focus on your goal, and you will achieve whatever you are desiring in your life. So make a positive focus and you are going right in your life. You don't need to be worried about. Now let's see about your words, the universe word, that what words are making from this letters. Okay, so first word what I am getting here is late. So कमिंग वीक में मेक श्योर कि आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आप लेट नहीं हुए. अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो लेट नहीं हुए, टाइम से पहुंचें. इवन आई एम सीइंग कि पाइल बी मेंबर्स आपके लिए जो कमिंग वीक है उसकी जो एनर्जीज आ रही थी वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन से एनर्जी आ रही थी. तो मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे लेट मत करिएगा. आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज जो है टाइम से कंप्लीट करिएगा. आप ऐसा नहीं करिएगा कि अपने गेस्ट को वेट करवा रहे हैं और टाइम से नहीं पहुँच रहे हैं. इवन आई एम सेइंग कि अगर जो लोग प्रेग्नेंट हैं एंड उनकी डिलीवरी इस कमिंग वीक में है, सो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अपना पहले से ही प्री टाइम थोड़ा सा जल्दी आप हॉस्पिटल जाइएगा, लेट नहीं होइएगा अपना हॉस्पिटल जाने के लिए. सो डॉक्टर से टाइमली आप बात करिएगा. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल बी मेंबर्स. थैंक यू सो मच. आई होप यू रेजोनेट विद माई रीडिंग. Hello Pile C members, the one who have chosen this beautiful multicolor ball. So let's begin with your reading.
So let's start. Let's shuffle cards for you. Let's see how will be your coming week. So you can invoke your angels, your spirit guides, your archangels to give you the reading about your coming week. So let's see what tarot cards wants to tell you about your coming week. Thank you. Thank you. One more time, let's shuffle and let's see. Thank you. Now let's see about your finances, related to your finances, related to your money, your career, what the angels wants to tell you for your coming week. Thank you. Now let's see about your love. So let me shuffle and see what angels, your spirit guides, your guardian angels wants to tell you about your love for coming week. Now let's see about your health for the coming week. What your body wants to tell you about your coming week. Thank you. Pisces members, if you have any question, a particular question, you can think about that particular question. Close your eyes and think about that particular question. Ask your angels to give you the correct answer that is best for you. So you can ask your particular question and angels will guide you and give you the answer for that particular question. Thank you. So Pisces members, let's begin with your reading. Let's see about your tarot cards for the coming week. Okay, for the coming week, what I am seeing that you have to be compassionate. You have to be, I would say here, you have to be you have to be more grounded in coming week. You don't need to be worried about financial. You are सिक्योर अबाउट द फाइनेंशियल. अगर आपके दिमाग में कुछ पैसों को लेके डर सा है, सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट. आप फाइनेंशियली सिक्योर हो. बट व्हाट आई एम सीइंग हियर दैट कमिंग वीक जो है वो थोड़ा सा आपको कंपैशनेट होना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है ग्राउंडेड होना पड़ेगा. इवन आई एम सीइंग दैट अ कमिंग वीक आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा अपने स्पाउस से, अपने पेरेंट्स से. आप लोगों को अगर किसी चीज़ का डर है तो वो सपोर्ट आपको किससे मिलेगा? वो सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा या आपके स्पाउस से मिलेगा. तो अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है या किसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं या स्पाउस से डिस्कस कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली कमिंग वीक में मैं ये देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है. थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है. So let's see about your second tarot card. So see, second tarot card में आ रहा है loss of peace of mind. Pisces members, आप लोगों के लिए जो रीडिंग आ रही है मैं देख रही हूँ कि आपका मन जो है, दिमाग जो है वो शांत नहीं है. और इधर भी कार्ड बोल रहा है कि कमिंग वीक में आपको शांत रहने की ज़रूरत है. और ये कार्ड बता रहा है कि आपका दिमाग जो है, आपका मन जो है वो शांत नहीं है. सो घबराइए मत, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए. यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई ना कोई आपको धोखा देने वाला है. आपका इवन आई एम सीइंग कि आपको कमिंग वीक में अपने बिलोंगिंग्स की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. मुझे दिख रहा है कि कमिंग वीक में हो सकता है आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ जो है वो मिसप्लेस हो जाए. सो यू हैव टू बी केयरफुल. यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो. कमिंग वीक में आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ, अपने बिलोंगिंग्स की तरफ. कोई ना कोई आपको धोखा देने वाला है कमिंग वीक में. सो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको शांत रहने की भी ज़रूरत है.
नेक्स्ट टैरो कार्ड जो बता रहा है आपके बारे में वो ये बता रहा है दैट आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप बार बार ही सोच समझ के करिए। आप अगर कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो उस पेपर को पूरा पढ़े, उस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़े, बहुत केयरफुल रहें, बहुत चौकन्ने रहें और तब जाके वो, अगर आपको पेपर साइन करना है तो कोई पेपर साइन करें। मैं कमिंग वीक में देख रही हूँ कि थोड़ा सा कमिंग वीक जो है वो आपको चैलेंजेस भरा हुआ वीक आपके लिए आ रहा है। सो लेट्स सी अबाउट योर हेल्थ फॉर द कमिंग वीक। आपके लिए जो हेल्थ है, अगर कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में चल रही है तो इस कमिंग वीक वो प्रॉब्लम जो है हेल्थ में आपका सुधार होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं या आपको कोई तकलीफ़ हो रही है हेल्थ रिलेटेड, तो ये कमिंग वीक आपके लिए बहुत आराम से गुजरने वाला है। एंड इवन आई एम सीइंग इस कमिंग वीक में आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। जो अभी तक आप अपनी हेल्थ को लेके अगर डिट्रॉट फील कर रहे थे तो इस कमिंग वीक में आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। सो लेट्स सी अबाउट योर लव फॉर द कमिंग वीक। सो कमिंग वीक में आपको अपने लव के लिए द कार्ड इज सेइंग दैट यू हैव टू री इवेल्यूएट योर डिज़ायर्स। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं आपको वापस से उनके बारे में सोचना है। आपको वापस से अपने डिज़ायर्स के ऊपर ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि आपको क्या पसंद था, आप क्या करना चाहते थे। आपको वो सारी चीज़ें वापस से इस वीक में करनी चाहिए। अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो आपको वापस से ड्राइंग करना चाहिए। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आपको म्यूज़िक दोबारा से सुनना चाहिए। तो वॉट एवर यू डिज़ायर्स, यू हैव टू बी री इवेल्यूएट दो डिज़ायर एंड you have to start working on those desire in the coming week. Now let's see about your money wise, your finances wise. So what I am seeing here that आपको थोड़ा सा डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. सो इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मनी और फिनेंसेस वाइज, तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. आपको उसमें क्रिएटिव आइडियाज़ डालने की ज़रूरत है. आपको उसमें अपने आप का इंटरेस्ट और ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है. तभी आपका जो काम है वो आप अच्छे से कर पाओगे और उस काम में मन लगाएंगे तो आपको उसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. सो पाइसी मेंबर्स, लेट्स सी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर एंजल्स क्या देना चाह रही हैं. सो उसका जो आंसर है, जो भी आपका क्वेश्चन था, अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो भी आपने क्वेश्चन पुट किया है उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको कमिंग ईयर में आपको मिल जाएगा. अभी थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है. सो फ्रॉम नाउ कमिंग ईयर, जो भी नेक्स्ट ईयर है, दैट इज एंड ऑफ 2021 तक जाते जाते आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा. So now let's see the additional message from the angels. So you can close your eyes and let's see what angels wants to give you the extra message for you. Thank you angels, thank you so much. So Pisces members, angels are telling you that a reminder that you are the creator of your own destiny. So angels बोल रही हैं यहाँ पे that आप खुद ही अपनी destiny आप खुद create करते हैं, आपकी खुद की destiny है. So you have to work on your destiny. You don't need to be blamed कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है. Pisces members, मैं देख रही हूँ कि एंजल्स जो बता रही हैं कि आप जो है वो आप ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हैं. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे में क्या कमी है. सो स्टॉप ब्लेमिंग. आपके में कोई कमी नहीं है, भगवान ने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया. आप अपनी लाइफ के खुद ओनर हैं, आप अपनी डेस्टिनी के खुद ओनर हैं. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और आप अपनी डेस्टिनी पे दोबारा वर्क कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. So let's see your universe message, that what universe wants to give you the message.
Let's see about your words. Okay, so the message from the universe is everything coming to you at the perfect time. Trust and be patient. So universe is also saying that जो भी आपको मिलना है वो perfect time पे आपको मिल जाएगा. Trust the universe, be patient. And आपका जो question है उसका भी आंसर यही है that right time will come and you will definitely get your आंसर. यू विल डेफिनेटली गेट, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आपको आंसर जो है, उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा परफेक्ट टाइम आने पे. ट्रस्ट एंड बी पेशेंट. एंड लेट्स सी अबाउट योर वर्ड्स. ओके, सो हियर आई एम सीइंग पाइले मेंबर्स. थोड़ी सी मैं उदासी देख रही हूँ आप लोगों में कि आप कहीं ना कहीं उदास हैं, आपका दिल खुश नहीं है. सो उस उदासी से बाहर निकलिए. अपना लाइफ को, जैसे कि मैंने बोला कि कार्ड भी बोल रहा है दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. सो आप अपनी डेस्टिनी को खुद बनाइए. आप जो एंजल्स ने मैसेज दिया वो ये दिया दैट यू नो यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर डेस्टिनी. अपनी डेस्टिनी को खुद बनाइए. आपको उदास होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. एंड द नेक्स्ट वर्ड व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज एम. AIM, एम. दैट आपको फोकस होने की ज़रूरत है. आपको एम के साथ काम करने की ज़रूरत है. इस कमिंग वीक आप बहुत ज़्यादा एम के साथ काम करिए. इस कमिंग वीक आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है. अपना फोकस रखिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे आप वर्क करिए. थोड़ी सी हैवी रीडिंग रही पाइल सी मेंबर्स आपके लिए, बट I wish you all a very good week, a very good coming week. I hope you all resonate with my reading. Thank you so much for joining. Do leave the comment in the comment section below if what pile you have chosen for yourself and how much you resonate with my reading. Like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.